Hi, welcome guys. Today is going to be yet another session with Saptarishi's astrology channel, and today is a very simple and basic topic and a controversial topic. And we have a hidden gem of an astrologer from Maharashtra, Mr. Sunil Gesas, and he's going to be talking today on why a planet gets exalted in so and so sign and why the planet gets debilitated in so and so sign. Now I know the problem in this topic. There have been so many articles in the last 100 years. Many astrologers have given many explanations. I know the criticism behind it is because somewhere down the line the hardcore scholars will always say, where is it given in a classical book, the logic? Or is the logic limited to an astrologer's own creativity? Okay. I am also aware that many astrologers in the West try to come up with their own logic. And I always tell that unless the logic is given by the Rishi, everything else, any other kind of logic, is purely the astrologer's own thinking. It's a controversial topic. But sometimes the logic of a senior astrologer helps us in understanding something deeper about the graha. Something that we can further use it in our understanding of our complete horoscope or astrology. So I know there can be some kind of criticism, etc. But I can assure you one thing. Anything that Sri Gesas sir does is a gem. So ladies and gentlemen, let's have juice with Sunil Gesasji. Gesasji, welcome. Welcome to Saptarishi's Astrology. People have seen one of your videos so far, which is on Prashna, and everybody loved it. And Gesas sir, please feel comfortable. Any language that you want to talk, I will always this thing. Language is not a barrier for us astrologers. Yeah, definitely. And Gesas sir, I have seen you give some beautiful logic for. So can you teach us today? Can you teach all of us today, planet-wise, why a planet is exalted in so and so Rashi, debilitated in so and so Rashi, and if we have time, you could go further into the nakshatra of it. If we have time, I know you are a very busy person. ऐसे सोचते हैं कि ये ग्रह है, राशि है, नक्षत्र है, ये सब हमारे लिए है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक राशि चक्र है, और हम लोग बोलते हैं कि मेष राशि का जो अमल है वो सर के ऊपर है और मीन राशि का अमल जो है वो पैर के ऊपर, पैर में है। So Mesh is on the head. Mesh is on the head and Meen is on the feet. Correct. तो let us take planetary wise ये करते हैं कि सन, हम लोग बोलते हैं कि सन मेष राशि में उच्ची का होता है। Sun gets exalted in Mesh राशि. हाँ, और मीन तुल राशि में वो नीची का होता है। It gets debilitated in Libra. बराबर। तो अभी देखिए कि सन का अगर हम लोग क्वालिटी देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि वो आत्मा कारक है। सन इज आत्मा कारक। यस। तो आत्मा की ड्यूटी क्या है, आत्मा का फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ कोई भी ज्ञान लेना, ये आत्मा का काम है। मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये ज्ञान लेना ये आत्मा का काम है। So sun is the आत्मा कारक and the duty of sun is to take knowledge. या तो अभी हमारा नॉलेज रजिस्टर कहाँ पे होता है, वो ब्रेन में होता है, और ब्रेन सिचुएटेड कहाँ है, तो मेष राशि में। तो सन के लिए जो है, रवि के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, वो मेष राशि की होगी, जहाँ पे ब्रेन है, हमारा सर है। उसीलिए वो सन जो है, रवि जो है, वो मेष राशि में उच्ची का होता है। So because the sun is taking the knowledge and the knowledge gets registered in our brain. Yeah.
So that's the first house or rather Mesha. Yeah. You know. Yeah. So sun gets exalted in Mesha. the Mesha, That's right. one of the logic. यस, अभी हम लोग देखते हैं कि रवि तूल राशि में नीची का क्यों होता है। तूल राशि का जो हमारे शरीर पे अमल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम पे तूल राशि का अमल है, तूल और वृश्चिक राशि का। So sun gets debilitated in Libra, and that is our this portion, that is our reproductive system. एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी जैसे हम लोग आत्मा कारक बोलते हैं और आत्मा का काम है कि ज्ञान होना, तो ज्ञान तूल राशि की ये जगह नहीं है। तूल शरीर में जो तूल राशि का अमल है वो जगह नहीं है कि वहाँ ज्ञान होने की जरूरत है। इसीलिए जो आत्मा कारक ग्रह जो है वो तूल राशि में नीची का होता है। Okay, so because that's not an area where knowledge is registered. So it gets debilitated in that portion which is Libra. या अभी इससे उल्टा ये देखते हैं कि सैटर्न जो है, शनि जो है वो तूल राशि में उच्ची का होता है और मेष राशि में हम लोग बोलते हैं कि ये नीची का होता है। अभी ऐसे ये समझ लीजिए कि ये हम लोग बोलते हैं कि शनि नपुंसक ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है और तूल राशि का जो अमल जैसे अभी हम लोगों ने ये किया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तूल राशि का अमल है। Yeah, isn't that controversial? Isn't that? Yeah, I'll explain it to the viewers. Yes. What they're saying, what sir is saying is, Saturn gets exalted in Libra and debilitated in Mesha, but Saturn is a eunuch planet. Okay, and what sir is saying is, if it's a eunuch planet, why it is getting exalted in Libra, where reproductive system is there? You know. तो अभी हम लोग सोचेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ एक कंट्रोल है, वहाँ एक कंट्रोल है। और शनि जो वायु तत्व का है, वायु तत्व का एक काम आता है कंट्रोल करना, वो भी वायु तत्व का काम है। और हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर, हमारी जो शरीर है, बॉडी है पूरी, वो सप्त धातु से बनी हुई है और ये सप्त धातु जो है उनका मेन इंग्रेडिएंट है वो जलीय है। तो बोलते हैं कि वो जलीय है, मतलब उसमें पानी मेन है। अगर और पानी की नेचुरल टेंडेंसी है नीचे फ्लो करना, तो अगर हम उधर कंट्रोल नहीं होगा तो पूरा हमारी जो धातु है, सप्त धातु है, विल फ्लो अवे। और फ्लो नहीं होना चाहिए करके वहाँ कोई ऐसे कंट्रोलर होना चाहिए कि वो कंट्रोल भी करे और उसका यूज भी ना उसे हो। वैसे हम लोग देखेंगे तो कंट्रोल करने के लिए अग्नि तत्व के रवि मंगल अच्छे हैं, लेकिन वो पुरुष ग्रह है जो यूज कर सकते हैं उसको, तो वो उनको उसका यूज भी नहीं होना चाहिए और वो कंट्रोल भी होने। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पुराने जमाने में बेगम लोग, रानी लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो पालकी में जाते थे और वो पालकी के जो भोई या जिसको कैरी करते थे, वो पालकी जो लोग कैरी करते थे वो सभी भोई तृतीय पंथ के होते थे। वो क्यों तृतीय पंथ के होते थे? क्योंकि एक गांव से अगर दूसरी गांव में जाना है और रानी अंदर बैठी हुई है तो उनसे जो कैरी कर रहे हैं रानी को, उनसे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो जो नपुंसक शनि है, वो नपुंसक ग्रह शनि तूल राशि, जहां से हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, उसको कोई यूज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये उसके पीछे हिडन ये है। Okay, can I sum it up? Yeah. Okay, you're saying Saturn is a eunuch planet and it is also a controlling planet. So it will control the Libra and this portion, the reproductive portion. Can we also interpret it this way, sir? My question is that humans can have more tendency towards sex. They cannot control it. Yeah. And that's the reason Saturn needs to be present over there to control, Yes. to have a balance. Exactly. हम लोग अगर सृष्टि में देखेंगे तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसे है जो एनी टाइम दे Are ready for sex. दे आर रेडी फॉर सेक्स। और बाकी जो अब प्लान ये एनिमल्स अगर हम लोग देखेंगे, दे डोंट ऑलवेज रेडी फॉर सेक्स। उनका टाइम रहता है और वो टाइम में ही ये करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसे है कि दे आर रेडी फॉर एनी टाइम फॉर सेक्स। तो वो कंट्रोल होना चाहिए और वो कंट्रोल इसलिए होना चाहिए कि अगर हम लोग सप्त धातु देखेंगे तो वो सप्त धातु इस क्रम से है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसका पहले रस बनता है और अंत में शुक्र बनता है। मतलब
रस ज्यादा बनेगा और शुक्र कम बनेगा। अगर हम लोग वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वीक हो जाएंगे और पूरे सप्त धातु हमारे शरीर से निकल जाएंगे और निकलने नहीं चाहिए। इसे इसलिए वहां कंट्रोलर ऐसे होना चाहिए कि वो उसे कंट्रोल भी कर सके और जो शुक्र है उसका उसको कोई यूज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से कि सैटर्न लिब्रा में उच्ची का होता है। What is the other logic? Why Saturn gets debilitated इन मेष। Mesh? अभी जैसे हम लोगों ने ये कहा कि ये सैटर्न जो है ये वायु तत्व का है और शूद्र वर्ण का है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रह को वर्ण दिए हुए है तो सैटर्न शूद्र वर्ण का है। तो घर में भी आप देखिए, कभी भी अगर आपके घर में जो मेड है वो आपको अगर बोलेगी कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको? तू तुझं काम कर, तुझं काम मला शिकवायचं नाही है। तो इधर जो ये जो जगह है मेष राशि की वो डिसीजन मेकिंग है और शूद्र वर्ण का वो काम नहीं है डिसीजन मेकिंग। उनका काम ये है टू ओबे द ऑर्डर। इसीलिए सैटर्न यहाँ पे नीची का कहा जाता है। मेष राशि में सैटर्न नीच का कहा जाता है। I'll explain it out. What sir is saying. In the Varna system, like Brahmin, Kshatriya, this thing, Saturn comes under Shudra. Okay, that means the lower working class, the servant class, etc. And it gets this thing in Mesha. So debilitated in Mesha because the servant cannot dominate you, cannot dominate your decisions. Servant has to follow your decisions, has to follow your decision. So that's the logic given by Gesasa. Next planet. नेक्स्ट अभी हम लोग मून की तरफ आते हैं, चंद्र की तरफ आते हैं। हम लोग बोलते हैं कि चंद्र वृषभ राशि में उच्ची का होता है। Saturn gets exalted in Taurus. नहीं, मून जो Sorry, है soon Moon gets exalted in Taurus. हाँ, मून गेट्स एक्सॉल्टेड इन टॉरस। तो ऐसे सोचिए कि ये जो पंचतत्व है, ये पंचतत्व के जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूरे वृषभ राशि में भरे हुए हैं। मतलब आकाश तत्व का ज्ञानेंद्रिय ईयर है, वायु तत्व का ज्ञानेंद्रिय स्किन है, अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्रिय आंख है, जल तत्व का ज्ञानेंद्रिय टंग है और पृथ्वी तत्व का ज्ञानेंद्रिय नोज है। और ये पूरा वृषभ राशि में है। और चंद्र जो मन का कारक है, तो अगर चंद्र की शक्ति ये इंद्रिय के पीछे नहीं होगी तो ये ज्ञानेंद्रिय यूजलेस है। मतलब ऐसे होता है कभी बहुत से टाइम में कि हम लोग अपने दिमाग में चलते हैं या घर की बात करते हैं कि हम लोग कोई टीवी में मैच देख रहे हैं और वाइफ बाहर जा रही है और बोल रही है कि मैंने गैस पे दूध रखा है, तो ये हो जल जाने से पहले उसको बंद कर देने का, टाइम में बंद करने का है। मैंने सुन तो लिया है लेकिन मेरा ध्यान जो है वो टीवी की तरफ है। मतलब मेरा माइंड जो है वो पूरा आँख के आइस के उसकी माइंड की जो शक्ति है वो पूरी आँख के पीछे है। तो शब्द तो मैंने मेरे कर्णेंद्रिय ने सुन ली है लेकिन उसके पीछे मन की शक्ति नहीं है। तो अगर मन की शक्ति इंद्रिय के पीछे नहीं होगी तो ये इंद्रिय यूजलेस है। और अगर मन की शक्ति उसके पीछे होगी तो उसके इतना स्ट्रांग कोई भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ राशि का आदमी जो भी काम करता है वो दिल मन से कर, उसकी पूरी ताकत, चंद्र की पूरी ताकत उसके पीछे रहती है। क्योंकि वो जो वृषभ राशि में जो पांचों ज्ञानेंद्रिय आते हैं उसके पीछे अगर मन होगा तो ही सिर्फ काम बन सकता है, अदरवाइज वो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए वृषभ राशि में वो उच्ची का माना गया है। And why does it get debilitated in? अभी वृश्चिक राशि के जैसे, हाँ, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि चंद्र जल तत्व का है और जल तत्व का एक खूबिया ये है कि वो फ्लोइंग वाटर है, मतलब स्वच्छ पानी है। या मराठी में हम लोग बोलते हैं कि निर्मल मन। निर्मल मतलब जिसमें मल नहीं है, जिसमें फंगस नहीं है, ऐसे ये इसको हम लोग निर्मल मन बोलते हैं। और मन अगर जल तत्व का है तो अगर वो निर्मल होगा, इसलिए कर्क राशि में उसकी स्वराशि है जहां वो निर्मलता है। और वृश्चिक राशि का जो पानी है वो स्टैंड स्टिल है, उसमें फंगस जमा हुआ है, तो वो स्टैंड स्टिल है। इसीलिए वो जो मन के जो कारकत्व है कि वो निर्मल होना चाहिए वो वृश्चिक में नहीं है। तो इसलिए वृश्चिक का आदमी कभी भी खुले दिल से कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो पहले शक लेगा कि ये आदमी मुझसे जो बोल रहा है
वो अच्छी तरीके से बोल रहा है, इसमें इसका कोई मतलब तो नहीं है। आप भले ही उनसे कितनी भी फ्रैंकली बोलो, फेयरली बोलो, लेकिन वो फेयरली शुरू में नहीं लेंगे। वो हर जगह हमें चेक करके लेंगे कि ये सामने वाला जो आदमी है, मतलब उसमें निर्मलता नहीं है, उसमें फेयरनेस नहीं है। और चंद्र का गुण है कि वो निर्मल होना, जल तत्व का गुण है कि वो निर्मल होना चाहिए, वो फ्लोइंग होना चाहिए। और वृश्चिक का जो पानी है वो स्टेडी वाटर है, जिसमें फंगस जमा हुआ है, इसलिए स्पॉइल्ड वाटर है। इसीलिए वो वृश्चिक राशि में चंद्र जो है वो नीच का हो जाता है। Next You one. want to? Yeah, basically, what sir is saying is Scorpio. Scorpio is water. वो Sure. वृषभ का एक्सप्लेन करना बाकी है। Oh yes, yes, you're right. So, okay, let's go. Why does Moon get exalted in Taurus? Please correct me. Yeah. Is our Indriyas, you know, the पंच ज्ञानेंद्रिय, five Jnanendriyas, five ज्ञानेंद्रिय, okay, like tongue, tongue, eye, eyes, ears, Ears. nose, and skin. nose, and touch, skin. Skin. Okay, these are all there in Taurus. That is the controlling sign of Taurus. Whenever we are doing any activity, our mind, our moon is there in these things, in these activities. What we are doing out of this five Jnanendriyas, you know, seeing television or eating food, our mind is not there, then we will not enjoy it. We will not do it properly, you know, to full satisfaction. Okay, and that's the reason a good moon in Taurus. These people will always do things from their heart and soul and mind, you know, means the full flow of energy goes there. Same way, when we take this moon in Scorpio, Scorpio water, it's a Jala Rashi, that means watery sign. Scorpio water is very dirty, fungus, you know, and still. It's standstill kind of thing. And that's what moon is not about. Moon is about flowing and being just, you know, and being clean and pure. The mind has to be pure. And that is the reason moon gets debilitated in Scorpio, because all its anti-forces are over there. What weakens it. Am I right, sir? Yeah, I've covered. I hope I've Definitely. Next planet. अभी आगे जाते हैं, मार्स देखते हैं। Mars. मार्स जो है वो मकर राशि में उच्ची का होता है। In Capricorn, it gets exalted and debilitated. कैंसर में वो नीची का होता है, नीची। कर्क राशि में वो नीची का होता है। Right. अभी मून, मार्स को ऐसे बोलते हैं मंगल को कि वो ग्रह राज्याचा सेनापति है। वो उनका सेनापति है, ग्रहांचं जे राज्य है उसका वो सेनापति है। तो सेनापति के लिए सगळ्यात सबसे अच्छा कार्यक्षेत्र कौन सा होगा? जो कर्मस्थान में है। और काल पुरुष की कुंडली में कर्मस्थान में मकर राशि आती है। और आप देखेंगे कि मकर राशि का आदमी जितना काम कर सकता है उतना कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो ये जो वॉरियर है, सेनापति है, उसके लिए सबसे बढ़िया ये जो है जगह जो है वो मकर राशि की है, क्योंकि वो कर्म का द्योतक है। भले ही उसका स्वामी शनि है, शनि भी कर्म का ही द्योतक है, और मकर राशि भी ही कर्म की द्योतक है। तो इसीलिए वो कुंभ में नहीं उच्चिका होता है, क्योंकि वो लाभ स्थान है। वहां उस मंगल के कोई काम नहीं है। उसका काम उसके लिए जो ओपन ये मिलता है, ग्राउंड मिलता है, वो मकर राशि में मिलता है। इसलिए मकर राशि में वो उच्चिका होता है। और उसके सामने वाली राशि कर्क राशि, उसमें वो नीची का होता है। इसलिए क्योंकि ये सेनापति जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, दिल से भी और दिमाग से भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही वो अटैक कर पाएगा। और कर्क राशि के आदमी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। और आप और भी एक नोट कीजिए कि जिनके भी कर्क राशि के मंगल है, वो किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। मतलब अगर कोई भी सामने से ये अप्रोच होता है तो वो उसको ना नहीं बोलता है। और आप और भी नोट कीजिए कि जितने भी लव मैरिज फेल्यूर है उसमें आप मेजॉरिटी देखेंगे कि वो कर्क मंगल के आपके कि किसी ने आपसे अप्रोच किया, आपने हाँ बोल दिया, उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे ना बोलने का अधिकार है। इसलिए जो मंगल का जो कारकत्व है उसके लिए कर्क की जगह ठीक नहीं है।
मकर की जगह उसके लिए बहुत ही अच्छी है। What sir is telling is, let's take the planet Mars. Mars gets exalted in Capricorn. Okay. Mars is the warrior. Mars is the commander in chief of the army. Okay. What is the work of the commander in chief? The work of the commander in chief is to do action, karma. Karma, action is the 10th house of the natural this thing, and the zodiac becomes Capricorn. Zodiac sign becomes Capricorn. So that's the reason it's very comfortable for its energies to blossom in the 10th house, that is the Capricorn. Capricorn basically. Similarly, if you see, Mars gets debilitated in Karka, that is Cancer. Cancer people, it's a moon owned by moon, so they are very soft by nature, and that's not Mars. Mars is aggressive, so it is getting opposite qualities now. Okay, restricting qualities. And one more point that Sir said is, these people these people are uncomfortable in saying no. In saying no to people, they almost forget that they have a right to refuse. Right to refuse. And his observation is, okay, that people who have failures in love marriages normally can have Mars in Cancer. Okay, they just accept a proposal. Somebody says I love you, they accept it. Later they realize, oh, it's not working out, and it's a failure. So that is his explanation. Let's take sir. Okay, I want to ask one question, and it can be a stupid question. Okay, but I always believe that when I'm doing a session with a senior, I am representing the audience. Yeah. Okay. Mars is also Karaka of property. Yes. Okay. Fourth house is property. Your home, property. So how come Mars in Karka, the natural zodiac Karka, which is the fourth house, how come Mars is debilitated over there? अभी मार्स को दूसरा, मंगल को दूसरा एक बोला है भौम। भौम मतलब भूमिपुत्र, भूमि मतलब पृथ्वी। अभी हम लोग अगर तत्व के ये देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, तो आकाश से वायु तत्व, वायु की निर्मिति है, वायु से अग्नि की निर्मिति है, अग्नि से जल की निर्मिति है, और जल से पृथ्वी की निर्मिति है। तो ये जो पृथ्वी भूमि जो है, या भौम जो है, वो भौम की निर्मिति कहाँ से हुई है? जल से हुई है। और जल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जो फोर्थ हाउस का जो ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का ये जो बोलते हैं, तो इसीलिए कर्क राशि में मंगल होना वो नीचे का है। लेकिन अगर कर्क राशि का या फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ होगा, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी अच्छा बना पा रहा है। या फिर चंद्र मंगल योग साथ में रहते, चंद्र और मंगल साथ में रहते हैं, तो उसको लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द सोर्स की लक्ष्मी बनाने का ये है। तो इसीलिए वो कर्क राशि में वो नीचे का है, लेकिन चंद्र से उसका रिश्ता, जो कर्क राशि और चंद्र अगर आप एक करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कर्क राशि को अलग रखो और चंद्र को अलग रखो, तो चंद्र मंगल साथ में रहेंगे तो उसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। लेकिन मंगल अगर कर्क राशि में रहा तो वो नीची का हो जाता है। क्यों? और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये सभी ग्रह हमारे या राशि हमारे बॉडी के ऊपर सर से लेके पांव तक बिठाए गए। तो अभी हम लोग उसको उच्चिका और नीचिका जो ये कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी, हमारे सोल से उसका नाता जोड़ रहे हैं, और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। So sir's answer is that we have to see the tattva first. Okay. The tattva is, we start with Akash. Vayu. After Akash becomes Vayu. Okay. Agni. That means air. Okay. Akash is ether. Ether say it becomes air. After that, air, fire. it is fire. That is the Agni. After fire, it is Water. Water. That is Jala Tattva. And after that is Prithvi Tattva, which is earth or Earth. this thing. So Cancer is Jala, water.
from water comes earth. Earth. Okay, earth rises up. Okay, from the water. Okay, so there, because it kinds of, if I am permitted to say, it kinds of becomes like uska bachcha. बच्चा है, right? Bachcha. Okay, so we call Mars. In fact, Mars is also called भूमिपुत्र. Bhumiputra. Okay, भौम उसका भौम. दूसरा नाम है भौम. Bom. Okay, so mother will always give best results Yes. for child. Child. So here, because fourth house is this thing, okay, property. So Mars, if it is debilitated in Karka, okay, it does give good property. Yeah. Am I right? Yeah. Okay, and don't take it from the logic of Cancer. Sir is telling, take it from the logic of Moon and Mars. Mars. Yes. And other thing he said is, for example, if the fourth lord is with Mars, person can get good property. If Moon, Mars opposition or conjunction, both you take Yes, conjunction. Conjunction. उसको लक्ष्मी योग बोलते हैं. opposition, Opposition को नहीं. नहीं. Conjunction is लक्ष्मी योग. conjunction, sir takes as Lakshmi Yoga. So that gives good property. Okay. So this is how we go to interpret it. Okay. So, sir, next planet, how do you take it? मर्क्यूरी, बुध हम लोग बोलते हैं कि कन्या में वो उच्चिका है और मीन में वो नीचिका है. अभी बुध इटसेल्फ इज पृथ्वी तत्व का है. तो पृथ्वी का जो काम है वो संगठन और संवर्धन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं. मतलब मेरा तो मैं मेरे पास रखूंगा ही, आपका भी मैं खींच लूंगा. और कन्या राशि जो है वो प्योरली पृथ्वी तत्व की है. तो बुध कन्या में उच्चिका होता है क्योंकि उसको उसका जो नेचर है, उसका जो कारकत्व है, वो कारकत्व को सपोर्ट करने वाला एटमॉस्फेयर कन्या राशि में, वर्गों में. और अब उसके अपोजिट आप अगर देखेंगे, मीन राशि में जाएंगे तो वहां अगर देखेंगे तो उधर वहां जो है मीन राशि को समुद्र की उपमा दी गई है. उसको हम लोग बोलते हैं कि कर्क राशि को हम लोग बोलते हैं कि फ्लोइंग वाटर है, वृश्चिक राशि को हम लोग बोलते हैं कि वो स्टैग्नेंट वाटर है, और मीन राशि को हम लोग बोलते हैं कि वो समुद्र है. मतलब उधर पानी, तो पूरा पानी ही पानी है. और पानी जल तत्व का ये गुण है कि वो जहां भी जाता है वहीं का हो जाता है, या दूसरा कोई उसमें मिलाया जाता है तो वही उसको भी समा लेता है. मतलब हम लोग बोलते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसे जैसा. या फिर कोई भी वेसल में पानी तो फ्लोइंग है, लेकिन मैं ये वेसल में डालूंगा तो ये वेसल का वो शेप ले लेगा. तो पानी का ये गुण है कि दूसरों को अपने में समाना और जहां जाएंगे वहां के हो जाना. लेकिन पृथ्वी का गुण है कि वो दूसरों को अपने में समाते नहीं है, वो दूसरों का आप खींच लेते हैं अपने, और वो खींच के या जमा करके ही क्रिस्टलाइजेशन जो उसका क्वालिटी है तो वो हो जाएगा. लेकिन मीन में वैसे नहीं है. और अब अगर कन्या और मीन राशि के आप अगर जातक देखेंगे तो कन्या राशि के आप देखेंगे कि वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, और मीन राशि के अगर देखेंगे तो वो खुद का नहीं सोचेंगे, वो पहले बाकी लोगों का सोचेंगे और खुद का ज्यादा टाइम सोचेंगे ही नहीं. और जो बुध प्रधान व्यक्तिमत्व है वो हमेशा खुद का सोचेगा. इसीलिए कन्या में वो उच्चिका होता है, और मीन में जहाँ से बाकी लोगों के भी विचार की जाती है या आनंद देने की बात होती है, कन्या सिर्फ खुद के आनंद की बात करेगा, और मीन राशि वो बाकी लोगों के खुशी की बात करेगा. तो वहाँ वो नीच हो जाता है और यहाँ पे वो उच्चिका हो जाता है. What sir is telling is, Mercury, the tattva of Mercury is Prithvi, Earth. The tattva of Virgo is, again, it is a fixed sign. Okay. So here Mercury gets more comfortable to give its result. Give its result. It's like a trading graph. Vaishya बोलते हैं क्या सर बोलते हैं? वैश्य वर्ण. Vaishya Varna. So the trading, it's the Karakatva meaning of it is trading. इवन कन्या राशि भी वैश्य वर्ण की राशि है. Correct. And even the Rashi Kanya, that means Virgo, is also Vaishya, that means the trading. So here Mercury gets very comfortable. And what sir is telling is, Virgo people, are usually very self-centered. They look at themselves first. It doesn't mean that they do not look at other and help others. But the first is, have money first, then donate. Whereas it gets debilitated in Pisces. Okay, Pisces is a watery sign.
Okay, and you have Mercury, which is Prithvi. So there it becomes conflict of interest over there. Okay, and it does not perform well in Pisces. Okay, so here you get the Tattva element over there. At the same time, Pisces people, as per sir, okay, usually they are always of the giving nature. They are not very self-centered kind. They first look for happiness for others. So that is how you see why it gets exalted here, why it gets debilitated. अभी इसके उल्टा हम लोग देखेंगे कि शुक्र वीनस वो एग्जैक्टली उल्टा है कि वो मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या में नीची का होता है। तो फिर हम लोग अगर तत्व की तरफ बढ़ेंगे तो शुक्र जल तत्व का ये है और जल तत्व की ही मीन जल तत्व की राशि है। फिर एक सवाल आता है कि कर्क और वृश्चिक में वो क्यों नहीं उच्च का होता है, मीन में ही क्यों उच्च का होता है। तो जल तत्व का ये है कि तृप्ति आनंद समाधान, और अगर हम लोग उसके ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की तरफ देखेंगे जल तत्व की, तो उसका ज्ञानेंद्रिय है रसना मतलब टंग और कर्मेंद्रिय है लिंग। तो नॉर्मली पीपल ऐसे रहते हैं कि उनको आनंद जो है वो ये रसना और लिंग से ही वो ले सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड ये है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि ये कंज्यूम करने का भी कुछ लिमिट हो जाता है। जैसे कि आपका कोई डिश फेवरेट है, आपने वो ये आपके सामने रख ली, आपने खा ली, आपने कहा कि यस नाउ आई एम हैप्पी कंफर्टेबल, फिर आपके सामने वही डिश रखी और बोले खाओ, तो आप बोलेंगे नहीं अभी मैं नहीं, क्यों तुम्हारा आवड़ते ना, आपको अच्छी लगती है खा लो, नहीं अभी नहीं, मतलब उसका लिमिट है। वैसे ही लिंग का भी है कि हम लोग जो ये लेते हैं उससे जो सुख लेते हैं उसको लिमिट है, उससे ज्यादा हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो वैसे ही ये जो ये है जल तत्व का। और अगर ऐसे समझो कि जल तत्व की जितनी भी राशि है कर्क वृश्चिक मीन वो विप्र वर्ण की राशि है। विप्र वर्ण मतलब ब्राह्मीण ये इसकी राशि है। तो अगर और जल तत्व जो है आप देखेंगे कि ये विप्र वर्ण की वही विशेषता आप देखेंगे, जैसे कि हम लोग लेट्स कंपेयर कि वैश्य वर्ण और जल तत्व। वैश्य वर्ण को आप कितना भी दो ही विल नॉट सेटिस्फाई, यू वांट मोर। और विप्र वर्ण को आप सिर्फ एक झुक के नमस्कार करो, उसके मुंह से आएगा शुभम भवतु, कि मतलब मैं तो खुश हूँ आपका भी भला हो जाए। तो ये जो विप्र वर्ण के लिए है, तो जो मीन राशि क्यों ली है, तो मीन राशि 12th हाउस में आती है और वहां से जैसे हम लोग ये हमारे इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचर हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। मीन राशि से जो है वो नेचर देखते हैं, मतलब हम लोग डोंगर देखते हैं, हम लोग सरोवर देखते हैं, हम लोग समुद्र देखते हैं, ये सब हम लोग मीन राशि के देखते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं कि जो वहां रहते हैं, वहां रह के तपश्चर्या करते हैं और उनको ये जरूरत नहीं होती कि मैं नीचे आके मेरी ये फेवरेट डिश है वो खाना है मुझे, या मुझे शरीर सुख चाहिए, नहीं, दे आर कंफर्टेबल देयर। और हम लोग जो यहाँ रहते हैं वो जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो जल तत्व का जो अंतिम ये है सुख और मोक्ष, मतलब हम ऐसे बोला गया है कि मनुष्य देह की इति कर्तव्यता मोक्ष में है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि 84 लक्ष योनीतून जन्म जीव फिरून येऊन माणसाचा जन्म मिळतो। तो वो जन्म इसीलिए मिला हुआ है, हम लोगों को मिला है कि ये जो चक्र है वो चक्र से मैं मुक्ति पाऊं। और ये मुक्ति पाने के लिए वो लोग वहां है कि वो जहाँ वहां जाके जो तपश्चर्या कर रहे हैं सचमुच में, तो उनको ये टंग की और लिंग की सुख की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हम लोग गिरी कुंवर बोलते हैं, मतलब दरी डोंगर बोलते हैं, वहां जाके रहने वाले जो लोग हैं वो हमसे भी, जो जल तत्व का एक्चुअल कर्म है सुख कंफर्ट, वो हमसे भी ज्यादा कंफर्टेबल है, उनको कोई ग्रीड नहीं है। और यहाँ जो हम लोग रहे हम हर एक इसमें ग्रीड है। तो वैसे इसीलिए वो मीन राशि में जहाँ से हम लोग नेचर देखते हैं, निसर्ग देखते हैं, वहां वो लोग पूरे सुखी है। और कन्या राशि जो वैश्य वर्ण की है, वहां पे शुक्र का दम घुट जाता है, क्योंकि वो जल तत्व का है और जल तत्व का नेचर है कि खुद खुश रहो और खुद की खुशी दूसरे की खुशी में पाओ। और कन्या का वो नेचर नहीं है, वो यही देखेगा दूसरा खुश है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुश रहना चाहिए। इसीलिए शुक्र कन्या में नीचे और मीन में वो उच्च का। Little difficult for me to explain this, so you'll have to guide me, handhold me on this. Is लेकिन आप समझ गए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मोटा मोटा, but
काफी लंबा था तो Venus gets exalted in Pisces. Okay? Pisces is Jala Tattva and Brahmin Yes, caste. yes. Pisces, the caste of Brahmin. Venus is also Jala Tattva is, हाँ जल तत्व और वो भी विप्र ही है. and Venus Brahmin is है. also a Brahmin. Hmm. Jupiter, Venus, both are Brahmins. Okay. So now, how do we bring in the Indriya, Rasa, रसना and Linga, लिंग. the reproductive part, and Tongue. tongue. Yes. Okay, this is what is Venus. हाँ this is, जल तत्व की इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हाँ, है. this is sorry. इसीलिए sure. इसीलिए ब्रेक कर रहा हूँ कि वृषभ राशि जो है वो इस पे आती है हाँ, और तुल राशि जो है वो इस पे आती link pair. है शुक्र की. Right, right. Okay, yeah, that's a good point. Shukra's Rashi, one is Taurus, that is the tongue part. Yeah. Okay, and other is Libra, which is the Linga, that means the reproductive part. So Shukra wants this, and Pisces is also limiting by nature. You know, so as Sir said, how much would we want to eat? After we eat something, there will be a capacity, a limit, and we stop that. Yes. Okay. Same is also with sex. You know, we can do it for a certain period of time, and then we need to rest. और उसका ये है कि अगर ये हम लोग गलत तरीके से ले रहे हैं तो देयर विल बी अ पिंच इन योर माइंड कि समझो मैं खा रहा हूँ और मैं मेरा पेट भर गया और बाकी मैंने छोड़ दिया और सामने मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चा भूखा ये है तो मेरे यहाँ चुभेगा कि नहीं. वैसे ही मैं अगर गलत तरीके से रास्ते से सेक्स ले रहा हूँ तो मैं टाइम बिंग एंजॉय करूंगा But लेकिन later लाइफ लॉन्ग मुझे यहाँ पे repentance होगा. क्योंकि वो विप्रवर्ण का ये नहीं है. Yeah, that's a very interesting point. That although Venus is Vipravarna, that is the Brahmin, okay, there is a sense of guilt because it's Brahmin. There is a sense of guilt. Ki if I'm eating, okay, I finished my food and I'm wasting my food, and some other person is in front of me and is not having food, so we feel some guilt. Oh, I'm eating and that person is not eating. Similarly, when it comes to the other part of Venus, which is sex, okay, that if we abuse it, you know, say we are enjoying sex in a wrong manner, okay, and we will feel at a later stage, at least at that moment we might enjoy, but at a later stage we will feel some guilt, and that's Venus, and that's where it becomes comfortable in Pisces, because even though it is, you know, the whole this thing, okay, like the 12th house of the natural zodiac, etc., and watery element, but it is also nature, mountains, all that, where our yogis go and, you know, spend their time. Yes. Okay, and the yogis are not so interested in coming down normal place and eating food or having sex, etc. So here it is a perfect balance in Venus and Pisces. Coming to the opposite side of Venus in Virgo, okay, Venus in Virgo, Venus gets uncomfortable here because Virgo is a kind of a selfish and trading this thing, and the Varna of Virgo is Vaishya. Vaishya Varna. So here the Vipra and the Vaishya Varna clash happens in the ideology. Okay, so it doesn't get comfortable here. Okay, and Virgo can be selfish. Okay, that is also one of the factors where it gets limited. Venus gets limited. If I missed out on something, please No, correct yes. me. Okay. Whatever. Also, I mean, what I would like to add is we are going to have subtitles. Usually, we release a video, and after a month or so, we have subtitles in English. Okay, when the volunteers come in and they do the work. So, if you are a Westerner and you feel comfortable with our accent, with my accent, or with the Hindi part, okay, do not worry. We always, in our previous videos, we have done it. Okay, we always come up with subtitles. Okay, One is remaining. one is remaining. Yes, Jupiter. Jupiter, the final planet. फाइनल प्लैनेट. तो जुपिटर कर्क राशि में उच्चिका होता है. गुरु जिसके पास हम लोगों ने ज्ञान दिए हैं और जो ज्ञान मैं लेता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि 5 सेंसेस है मेरे, तो ज्ञान मैं लेता हूँ वो ज्ञानेंद्रिय ये बोलते हैं.
और जैसे हम लोगों ने देखा कि वो ज्ञानेंद्रिय के पीछे अगर मन की शक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञानेंद्रिय वेस्ट है। और ये जो मन की शक्ति है वो 12 राशि में सबसे ज्यादा कर्क राशि में है। मतलब ज्ञान लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आपका मन का फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात ऐसी है कि फिर कर्क विप्र वर्ण की राशि है, और कर्क वृश्चिक मीन में आप अगर देखेंगे तो मेरी पहली गुरु जो है, हम लोग गुरु बोलते कि पहली गुरु जो है वो मेरी माता है, और कर्क राशि से मैं माता की तरफ जाती है। कर्क राशि को अगर हम लोग देखेंगे तो माता की तरफ, मतलब मुझे पहले से सिखाने वाला, मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया है वही लेके मुझे आगे बढ़ना है। और अगर गुरु कर्क राशि में होगा तो जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क राशि की तरफ जैसे माँ दी है वैसे मन भी दिया हुआ है, और गुरु को जो कारकत्व दिए है उसमें विशालता दी है, बड़प्पन दिया है। तो अगर आपका मन विशाल नहीं होगा तो वो ज्ञान का कोई ये नहीं है, आप अपनी तरफ रखोगे, दूसरों को दोगे नहीं। हमारी माँ कभी ऐसे नहीं करती है, वो पहले बच्चों को खिलाती है, बाद में अगर बचा बुचा होगा तो अपने को दे देती है। तो वो जो मन की विशालता है वो कर्क गुरु में आप पा लेते हैं। और दूसरी अगर सामने आप देखेंगे तो मकर राशि, उसका अमल घुटने पे है। तो नॉर्मली ऐसे थोड़ा सा मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ कि मकर राशि पे घुटने में है, और हमारे मराठी में बोला जाता है कि तथा मेंदू गुडघ्यात है। मतलब जो ब्रेन, हाँ, उसका ब्रेन इधर है, मतलब जो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता है, जो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाता है, या एकेडमिकली जो वीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मेंदू गुडघ्यात है। तो ये दिमाग से पैदल। हाँ, तो ये जो गुरु ज्ञान का कारक है, और अभी हम लोगों ने देखा कि मकर ये शनि की राशि है, और पृथ्वी तत्व की राशि है, रिजिड है। पृथ्वी तत्व रिजिड होता है ना, ये चीज अगर यहाँ है तो अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, ये सालों यहाँ ही पड़े रहेगी, बराबर। तो ज्ञान जो है वो फ्लोइंग होना चाहिए, ज्ञान जो है वो फ्लोइंग होना चाहिए, और विंडोज ओपन होने चाहिए, और वो नॉर्मली जल तत्व का जो गुण है वो नीचे फ्लो होना है। लेकिन हमारे ज्ञान जो रजिस्टर होते हैं वो यहाँ रहते हैं। मतलब ज्ञान को अग्नि का फोर्स लगा के हम लोग ये करेंगे तो यहाँ रजिस्टर होगा, अदरवाइज वो रिजिड रहेगा। मतलब अगर मुझे कोई सीखना है और मैं रिजिड हूँ, नहीं ये सब बोल रहे हैं, उसमें कोई मजा नहीं है, तो मैं ज्ञान नहीं ले पाऊंगा अगर मैं रिजिड रहूंगा। लेकिन मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा तो माई विंडोज विल ऑलवेज कीप ओपन, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊंगा। जैसा बोलते हैं कि दिल तुम्हारा खुला होना चाहिए, ये पाने के लिए कि मुझे कुछ सीखना है तो मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और अगर मकर राशि के लोग आप देखेंगे तो वो पृथ्वी तत्व की है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि पृथ्वी तत्व रिजिड है, इज नॉट रेडी टू मूव बाय इटसेल्फ। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत रहती है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद भी वो मोशन नहीं लेते। वो जितना टाइम आप लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही मूवमेंट करेंगे, वो बाद में वही पड़े रहेंगे। लेकिन अगर ज्ञान पाना है आपको तो इट शुड बी फ्लोइंग, और मकर राशि वैसे फ्लोइंग नहीं है, वो रिजिड है। और शनि अंत में वो शनि की चतुर्थ वर्ण का ग्रह बोलते हैं, शूद्र वर्ण का ग्रह बोलते हैं, उसकी वो राशि है, इसीलिए वहां पे गुरु नीची का पाया जाता है। So sir, चंद्र वर्ण which do you take? चंद्र वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो मीन राशि, चंद्र जो है वो माँ है, हम लोगों ने उसको माँ का कारकत्व दिया हुआ है। माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचती है नहीं। मेरा जो बच्चा है वो, मतलब ये जो अपनापन है वो लिमिटेड है ना, वैश्य, इसीलिए उसको चंद्र को हम लोग वैश्य, क्योंकि वो लिमिटेड ये सोच रही है, थोड़ी सी सेल्फिश है कि पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। ये सेल्फिशनेस हो गया कि नहीं? तो ये सेल्फिशनेस वैश्य वर्ण के पास है, इसलिए चंद्र वैश्य वर्ण का है। और रवि जो है वो आत्मा कारक है, वो मतलब ये वैश्य वर्ण का है, लेकिन वो वैश्य वर्ण का नहीं है। So let me sum it up here. Jupiter Varna is Brahmin. Jupiter is knowledge. Okay.
the first teacher is the mother. That is the fourth house of mother, where Karka Rashi is there. So the mother is always selfish towards the children. The mother will say first, कि I'm going to feed my children first and not the neighbor's children. So here, Karka Rashi, the Lord Moon, although it is Vaishya Varna, okay, that is how the thing translates. Vaishya means trading community. The trader will say first profit. So the mother says profit for my child first. Okay. So here Jupiter gets exalted, and the knowledge of Jupiter, okay, has to be of a flowing nature, which is Karka. Karka is watery, flowing nature, because knowledge needs to grow, knowledge needs to expand, to be given out. Okay. So here is where Jupiter gets exalted. Let's make a gist of it and go to Capricorn, where it gets debilitated. First and foremost, Capricorn, the Lord is Saturn. Shudra Varna. So that becomes Shudra Varna. And Capricorn is again fixed this way, rigid. The thing, although it is a Chara Rashi, yes. Although it is a Chara Rashi, but because of Saturn's this thing. I will add one thing. Sure. कि कैप्रिकॉर्न चर राशि है, लेकिन मकर राशि में जो नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, वो तीनों नक्षत्र पृथ्वी तत्व के हैं. Oh, beautiful. See, this is something. Yeah. You remember, while coming, I was saying, we go into nakshatras also. So, see, this is something, maybe we should do a video separate on, the Yes. nakshatras and the Rashi. Definitely. And, Yeah, that it will surely. be something. Surely. This thing. Sure. What Sir is telling is, although Capricorn is a Chara Rashi, that is a movable sign, but the three nakshatras that come in there, okay, Revati, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा. Uttarashada, Shravan, Dhanishta, they are all fixed. They are all fixed. पृथ्वी तत्व, अर्थ नेचर. Prithvi, the Tattva is Prithvi. That is the reason you get more fixity in it. और वो क्यों है, वो भी मैं जाते जाते बताता हूँ कि वो पृथ्वी तत्व क्यों है कि हमारे पूरे बॉडी के वेट पहले जो आता है वो घुटने पे आता है. अगर मकर राशि चर है तो मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मेरे पैर डगमग आएंगे, और नहीं डगमगाने चाहिए, इसलिए वहां पृथ्वी दिए है. और जो रिजिड होना चाहिए, पूरे बॉडी का वेट उसके ऊपर लेना चाहिए, इसलिए वो रिजिड है. रिजिड होना वो जरूरी है. Actually, the beautiful another way of looking at it is Chara. Yeah. The knee makes us walk. So Yes, the Chara yes, part, yes. the movable part. Yes. At the same time, because the weight of the body body is first comes on your knees Yes. and gives you the strength to stand. Okay, that fixity, that strength comes from the fixed part. Yes. Okay, so what Sir says, Jupiter's knowledge does not flow in Capricorn. It gets limited. It gets selfish, rigid. rigid. It gets rigid. So it gets debilitated in Capricorn. Yes. Yes. And if I miss something, do not worry. I'm not a good translator, and also, it's Nahi. lengthy part, so for me to remember everything. But I'm very happy we had this session today. And I think our next session with Gesa Sir should be on Nakshatras And Rashi. and the Rashi. Rashis. How it is Amazing. working, how it is playing and mixing and interacting with each other. Yes. Okay. Definitely. One last tip I want to ask you while outside we were discussing. Can you give us one tip on Gochar before we wind up on transits? गोचर में अगर हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि राइट नाउ गुरु सिंह राशि में है, शनि वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे समझ के चलो कि दो आदमी की मेष राशि है तो उनको 5वां गुरु है और 8वां शनि है. तो अगर सिर्फ हम उनकी मेष राशि को एक ही इसमें डालेंगे तो हमको सबके लिए एक ही ये देना पड़ेगा, प्रेडिक्शन देना पड़ेगा. लेकिन वैसे होता नहीं है. वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के ये जो गुरु और शनि हम लोग देखते हैं तो ज्योतिष दो इसमें चलता है कि
एक क्या होगा और एक कभी होगा। क्या होगा ये बताता है आपका बर्थ चार्ट, लग्न कुंडली जिसको हम लोग बोलते हैं, और कभी होगा ये गोचर भ्रमण बोलते हैं। तो अभी ये करो कि दोनों के भी पांचवा गुरु है, लेकिन अगर उनका बर्थ चार्ट आप देखेंगे तो एक का ऐसे समझ के चलो कि एक का अष्टम भाव में गुरु है जो अभी 5th हाउस से गुजर रहा है, और दूसरे का नवम भाव में गुरु है और जो 5th हाउस से चल रहा है। दोनों को एक ही रिजल्ट मिल सकता है? नहीं मिलेगा। एक के लिए एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा और दूसरे का एजुकेशन फाइन होगा। दो दे बोथ आर ऑल ऑफ मेष राशि। So in effect, you are trying to say what we get in all these newspapers. Yes. You know, the Rashi predictions, Yes, yes. newspapers. You know, the sign predictions. Yes. Okay, they are absolutely not correct. हाँ, क्योंकि वो सब पूरे दुनिया को सिर्फ 12 डिवीजन में डालना चाहते हैं, वैसे नहीं होता है। I will translate what you said, but why do even technical astrologers? I've seen these technical astrologers. Why do they want to do this sun sign prediction or moon sign prediction? Why do they want to do it, sir? I mean, is it just fame? Is it that's the whole idea? मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें पढ़ाई से ज्यादा फेम का ये ज्यादा है। लेकिन आप अगर उसमें आपका नॉलेज जोड़ो तो आपको उसमें जो लिमिटेशंस है वो आपको ज्ञान समझ में आएंगे। Which is what the example you Yes, gave right yes. now. Say for example, it is Mesh Rashi. Okay, so you have Mesh Rashi moon. मेष राशि में। As of now, Jupiter is in Leo, Hmm. Saturn is in Scorpio. Okay, so this is 5th house, 8th house. 8th house, Okay, yes. but from the Lagna, Hmm. okay, for somebody it will be in the 8th house. Yeah. For somebody it will be in the 5th house. Yes. That same planet. So obviously the results will vary and change. So we cannot generalize this. Okay, we cannot generalize it based on moon sign. क्योंकि उसके लिए हम लोगों को उनका बर्थ चार्ट देखना जरूरी We है। have to see the birth chart. We have to see the birth chart, the lagna, and Yes. of course many other factors. टोटल लिए। Yeah. Okay. Thank you so much, Gesa Saab. It's been a great enlightening session. Thanks. And I always believe basics are the toughest part in astrology. Yeah. Today we have covered basics, and I want to keep on covering basics. And I believe this video will come out simultaneously with the Avakada Chakra video. And in fact, yesterday I was in a session with Michael Reed and Kapil Raj, and I had mentioned your name, about the Avakada Chakra. Most brilliant lecture. If you haven't watched it, by the time you see this video, you got to watch Mr. Sunil Gesa sir's lecture on Avakada Chakra and Nakshatra and Tattva. How to mix it. How same horoscope, two people having the same horoscope can have two different professions based on Tattva and Avakada Chakra. Yeah. Right? Thank you so Thanks. much, Gesa sir. Thanks. Thank you so much.